Good morning, student of class 5. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today, I am going to revise some important topics from chapter number 1, which is evolution of computers. Okay, and in this video, I am going to discuss history of computers and generation of computers. Okay, so these two topics I am going to discuss in this video. And this is the syllabus for third term examination. Chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, all these 7 chapters are included in the third term examination syllabus. Okay, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जितना भी सारा यहाँ पे चैप्टर आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी के सभी चैप्टर्स हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं. ओके, तब भी आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो चैप्टर्स है दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा. ओके, दोबारा से इसको अच्छी तरह से जितना भी सारा चैप्टर्स है उसको आप लोगों को पढ़ना होगा. ओके, so first is history of computers. Okay, computer have evolved over a period of time. The invention of computer date back 1930s. that means 1930 में जो कंप्यूटर हुआ वो इन्वेंट हुआ था. ओके, when the electricity earliest computer came into existence, then since the computer continued to change our world. Earlier there were computers that used to occupy the whole room, and nowadays there are computers that can be owned. Okay, that means जो पहले वाला का जो कंप्यूटर होता था वो क्या करता था, जो एक पूरा का पूरा रूम होता है, एंटायर रूम होता है, उस तरीके से होता था. ओके, मतलब इतना बड़ा होता था, पूरा का पूरा रूम वो ऑक्यूपाई कर लेता था. लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि लैपटॉप आ गया है, टैबलेट आ गया है, जितना भी सारा वो भी सब कंप्यूटर होता है. ओके, मोबाइल फ़ोन भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है. ओके, now let's discuss some early calculating device. Some of the early calculating device such as abacus, Napier-Bones, Pascaline calculator, difference engine have played an important role in laying the foundation of modern day computers. Okay, so first is abacus. ये आप लोग देख पा रहे होंगे, this is the image of a abacus computer. Okay, calculating machine. Okay, so abacus was the first earliest calculating device. It consists of frames on rods with easily sliding beats on them. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे rods दिया गया है और यहाँ पे beats दिया गया है. Okay. Simple calculations such as addition, subtraction can be done on abacus by sliding the beats along the rods. Okay, so यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है इसमें खाली हम लोग दो ही चीज़ कर सकते हैं. एक तो हो गया एडिशन और दूसरा हो गया सब्सट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो होता था Napier-Bones. Okay, Napier-Bones is also called Napier-Roots. It was invented by the Scottish mathematician John Napier. Okay, it consists of 9 bones और स्टिक्स विथ नंबर्स मार्क्ड ऑफ देम. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर्स मार्क किया हुआ है. ओके, द प्लेसमेंट ऑफ स्टिक्स is done in such a way that the products and quotient of a large number can be obtained easily. Okay, next is Pascaline calculator. In 1642, Pascal developed a calculator called arithmetic or Pascaline. It was one of the world first mechanical counting machine. Okay, this is the world first mechanical counting machine. Okay, this device used a series of Thor's wheels. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे wheels दिया गया है. Okay, Pascaline could handle number up to 99 crore. Okay, 99 crores. Okay, so this is the image of a Pascaline calculator. Okay, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट मैकेनिकल काउंटिंग मशीन भी बोलते हैं इसको. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन. ओके, इन 18 Charles Babbage designed the first automatic calculating engine. Okay, called difference engine. It could be perform complex mathematical calculation. that means जितना भी सारा complex कैलकुलेशन होता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता था, वो इस मशीन से हम लोग कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट इज analytical engine. In the year of 1833, Charles Babbage started working on the analytical engine. This machine could store 1000 numbers and 50 decimal digit each. Okay, the machine could
perform arithmetical operations such as addition, subtraction, multiplication, division and many more function। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मशीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। ओके, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी बहुत सारा हम लोग इसको बहुत सारा फंक्शन इसमें कर सकते हैं। ओके, ये भी एक कैलकुलेटिंग अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट इज generation of computer। The development of modern day computer can be studied in reference to the different generation of computing devices. In each generation, technology improvement changed the way computers operated. The computers became smaller, cheaper, and more powerful, and more efficient and reliable with each generation. That means आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जब पहले जो कंप्यूटर का इन्वेंट हुआ था तब वो एक होल रूम को ऑक्यूपाई कर लेता था, लेकिन अब के ज़माने में क्या हुआ है, एकदम छोटा 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 छोटा, अब मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर होता है। मतलब साइज़ जो हुआ है वो डे बाय डे जनरेशन वाइज क्या होता है कि डिक्रीज हो गया है। ओके, और टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। ओके, टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। नाउ फॉलोइंग द टेबल लिस्ट डाउन द की फीचर्स ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन हैज़ बीन डन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, स्पीड, स्टोरेज एंड रिलायबिलिटी ऑफ एंड कॉस्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग जो टेबल में जो जनरेशन वाइज कंप्यूटर देखेंगे वो मेनली टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ हुआ था, स्पीड के कितना था, हर एक कंप्यूटर का स्टोरेज कैसा था। ओके, इसके ऊपर बेस करके ये जो टेबल है क्रिएट किया गया है। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज 1940 टू 1956। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। और यहाँ पे आप लोग कुछ एग्जांपल देख पा रहे होंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, इनियाक हो गया, एडिफेक हो गया, मार्क 1 हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का है। ओके, और फीचर्स क्या क्या है, दे ऑक्यूपाई ए लॉट ऑफ स्पेस। दैट मीन्स जो फर्स्ट, मैंने पहले ही बोला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता था कि बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता था। ओके, इंटर रूम भी ऑक्यूपाई कर सकता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, दे यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें क्या होता था कि ये जो कंप्यूटर होता था बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी ऑक्यूपाई कर लेता था और जो हीट है वो भी बहुत सारा हीट जनरेट करता था। ओके, द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर्स वाज वेरी स्लो। और जो ये जो कंप्यूटर होता था इसका जो स्पीड होता था, आपके ज़माने में, अब हमारे ज़माने में क्या हो रहा है अभी कि बहुत तेज़ी से हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत ही स्लो काम करता था कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963। ओके, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो था ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर। एंड जो एग्जाम्पल हो गया यूनिफेक 3, IBM 1401, IBM 700, NCR 300 सीरीज। ओके, दे आर स्मॉलर एंड फास्टर कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दैट मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उससे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो गया था। ओके, दे वर चीपर टू मेंटेन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, दैट मीन्स जो ये सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो थोड़ा चीपर हो गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आईसी यूज़ किया गया है। ओके, आईसी, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। ओके, और जो कंप्यूटर्स यहाँ पे एग्जांपल है IBM 360, ICL 900, यूनिफेक 1108। ओके, सो these are the example of third generation computer। okay, and features क्या क्या है, they were faster efficient than second generation computer। that means ये जो कंप्यूटर हो ये सेकेंड जनरेशन से थोड़ा ज़्यादा फास्टर है। दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन तो फास्टर है ही, उससे सेकेंड जनरेशन से भी फास्टर है। ओके, द यूज़र कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर। ओके, इस ज़माने में कंप्यूटर में क्या हुआ था कि हम लोग पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते थे। ओके, दे यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन रन ऑन वन टाइम। दैट मीन्स ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग
यूज़ कर सकते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 टू एट प्रेजेंट। दैट मीन्स ये जो कंप्यूटर सिस्टम है अभी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शायद डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड किया गया है। ओके, और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ओके, आप लोग यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये एक स्मॉल सिलिकॉन चिप है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। They were developed by combining together thousands of integrated circuit. That means पहले जो हम लोगों ने देखा कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था, और ये जो चिप है इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक साथ उसको कस्टमाइज किया गया है। ओके, onto a single silicon chip using VLSI. ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, टेक्निक, ये जो टेक्निक, ये दोनों टेक्निक का नाम है जिससे कि जो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक साथ यहाँ पे मौजूद है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डेस्कटॉप, एप्पल, ये सब क्या है कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसका जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। ओके, और फीचर्स क्या है, दे आर स्मॉलर, energy efficient and more reliable than earlier generation of computers and their store capacity is very large। मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो जो भी कुछ काम करें वो बहुत ही फास्ट होता है, और यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। द मॉडर्न डे कंप्यूटर कैन linked together from computer network. This led the development of the worldwide network called internet। ओके, इस ज़माने के कंप्यूटर में, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, इस ज़माने में कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट पहली बार यूज़ किए थे। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। दैट मीन्स ये अभी चल रहा है, डेवलपमेंट मोड पे है, और जो इन फ्यूचर इसके ऊपर ही जितना भी सारा होगा कंप्यूटर का काम, इस फीचर्स के ऊपर ही काम होगा। ओके, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ए ह्यूमन बीइंग। पहले हम लोग क्या देखते थे, फोर्थ जनरेशन तक कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर वही करेगा। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या होगा कि कंप्यूटर खुद से अपना डिसीजन ले पाएगा। ओके, वो सोच पाएगा क्या करना है उसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख पा रहे फर्स्ट में ही दिया गया है रोबोट्स। ओके, रोबोट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि रोबोट्स क्या होता है, को खुद से थिंक कर सकता है, कोई भी काम खुद से कर सकता है। ओके, फीचर्स क्या है, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। दैट मीन्स अभी भी साइंटिस्ट क्या हो रहा है, इस जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। ओके, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। द एडवांटेजेस ऑफ दिस जनरेशन इज कंप्यूटर दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस। ओके, दैट मीन्स ये जो कंप्यूटर होगा ये नॉर्मल जो नेचुरल लैंग्वेज होगा वो भी समझ पाएगा। ओके, ट्राई टू रिस्पॉन्ड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर। और इसमें क्या होता है, इन कंप्यूटर में क्या होगा कि बहुत सारा सेंसर्स लगा होगा, सेंसर्स ओके लगा होगा, उसी से ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा। ओके, सो आई होप दैट आप लोगों को अच्छी तरह से जितना भी सारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हो, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग दोबारा से अच्छी तरह से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss another topic. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.